وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ملکی حالات کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا. کہا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے عمران خان کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا گیا. ایف آئی اے کو شوکت ترین کی گرفتاری کرنے کے لیے اجازت بھی دی گئی ہے. اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی اور انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کپتان اور ان کی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیاسی دہشت گرد کا روپ دھار لیا ہے. ان کا گھٹیا ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا. تمہارا یہ گھٹیا ایجنڈا جو تم اس وقت لے کے پھر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو، اب یہ کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس طرح کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں انشاءاللہ تعالی اسے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شوکت ترین کے خلاف تحقیقات مکمل ہو گئی ہے. ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کرنے کی اجازت مانگی تھی جو دے دی گئی ہے. شیخ رشید بغیر سوچے سمجھے بیان بازی کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی. شوکت ترین جیسے بندے کو بھی جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا اور ان کے بہکانے میں آ کے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور الیکشن کمیشن جب چاہے گا وہ الیکشن کرائے گا. پہلے الزام تراشی پھر یو ٹرن کی پالیسی. عمران خان نے امریکی سازش کے بیانیے کو اپنی غلط فہمی قرار دے دیا. کہتے ہیں اب پتہ چلا ہے شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت گرائی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر. عمران خان نے ملبہ نواز شریف پر ڈال دیا. ویڈیو لنک خطاب میں بولے الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں جب یہ لوگ سمجھیں گے گراؤنڈ تیار ہے اس وقت الیکشن کرائیں گے. الیکشن کمیشن تمام فیصلے نواز شریف سے شکر کرتا ہے. عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ. 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. عمران خان نے استفسار کیا ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی کا اب ذمہ دار کون ہے. آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے. گھر میں چوری ہوتی تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں. جیل برو تحریک کی تیاری جاری ہے. چند روز میں اعلان کروں گا. 4 سال میں معیشت کی عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنانے والے کو پارلیمنٹ نے نکالا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں. چیف آرگنائزر مریم نواز نے واضح کر دیا. کہتی ہیں عوامی دانش میں یہ بات آ چکی ہے کہ نواز شریف سے ظلم ہوا ہے. اب سب لوگ نواز شریف کی بے گناہی کی گواہی دیں گے. نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر کے اسلام آباد میں ڈیرے. تنظیمی اور پارٹی معاملات پر ملاقاتوں، مشاورتوں اور بیٹھکوں کا سلسلہ جاری. میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں مریم نواز نے آئی ایم ایف معاملے پر کپتان کو ایک بار پھر نشانے پر رکھا. کہا عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، سخت شرائط مانی اور جب حکومت جانے لگی تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ملک کو پھنسا گیا. آئی ایم ایف کی شرط پوری نہ ہوئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. عوام جانتے ہیں موجودہ مسائل، مہنگائی اور معاشی تباہی کن کی وجہ سے آئی، کون اس کا ذمہ دار ہے. سابق وزیراعظم کے حوالے سے مریم نواز بولی نواز شریف جلد ہمارے ساتھ ہوں گے، جھوٹے مقدمات بھی ختم ہوں گے. نواز شریف کو اقامہ جیسے بھونڈے مذاق میں نااہل کیا گیا. یہ شکوہ بھی کیا کہ عمران خان کو لمبی لمبی تاریخیں مل جاتی ہیں. ہمارے لوگ اب تک ہر دوسرے دن عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. عمران خان کا موقف ہے کہ میرا ساتھ دو، مجھے کرسی پر بٹھا دو. شاہد خاقان عباسی کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی ناراض نہیں، وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. سینئرز کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میری ایسی پرورش ہے. یہ میرے لیے لائن ہے، اسے کراس نہیں کر سکتی. وزیراعظم یا وزیر اعلیٰ کا عہدہ فوکس نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نائب عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے پارٹی رہنماؤں کو پارٹی بیانیہ عوام تک پہنچانے کی ہدایت بھی کی. یہ لوگ ایک دن جیل جاتے ہیں تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان جیل بھرو تحریک پر جلد یو ٹرن لیں گے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کو یقین. کہتے ہیں عمران خان غیر سیاسی دماغ ہے، اعلان پہلے کر دیتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں.
शर्जील मेमन ने इमरान खान को सिंध में गिरफ्तारी देने की पेशकश कर दी। कहा, इमरान खान में हिम्मत है तो सबसे पहले खुद को गिरफ्तार कराएं। लांडी जेल में उनकी खूब खातर तवाज़ो करेंगे। इमरान खान और उसके हवारी जेल भरो नहीं, जेब भरो तहरीक के माहिर हैं। गंदम, अद्वियात, तेल और चीनी स्कैंडल से इमरान खान और उनके गोगों और गोगियों ने अपनी जेबें भरी। उन्होंने शौकत खानम के चंदे के पैसों को नहीं छोड़ा। अदालत में खुद एतराफ़ किया है कि शौकत खानम अस्पताल के $30 लाख सरमायाकारी में इस्तेमाल किए। आज मुल्क के हालात जिस नहज पर पहुंच गए हैं, उनका जिम्मेदार कोई और नहीं, इमरान खान है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। एमक्यूएम के शहर में 53 इजाफी यूसेस के क़याम के नोटिफिकेशन के मुतालबे में ताख़ीर पर एमक्यूएम रहनुमाओं का कहना है कि गवर्नर सिंध वज़ीर आला सिंध से राब्ते में हैं। गवर्नर और वज़ीर आला मामला खुश उसलूबी से तय करने के लिए मुतहरिक हैं। एमक्यूएम ज़राए के मुताबिक जल्द कराची में 53 यूसेस का इजाफे का नोटिफिकेशन और हैदराबाद से देही इलाकों को अलग न किया तो पार्टी फैसला करने में आज़ाद है। नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो धरना ही आखिरी ऑप्शन होगा। अवलीन तरजीह पाकिस्तान है, इसलिए एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। एमक्यूएम 14 फरवरी के बाद लाहे अमल देगी। महंगाई और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी का दावा। मार्च और रावलपिंडी पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पंडाल पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। शुरका से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से। जी सुहेल राजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का आज अवामी रोड मार्च का तीसरा और आखिरी रोज़ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फौरा चौक पर जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त उनका काफ़िला सुहावा के करीब पहुंच चुका है, जबकि यहाँ पे अगर हम जलसे की बात करें, जलसा गाह में कुर्सियाँ हज़ारों की तादाद में लगाई गई हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके, ये वो जगह है, सामने स्टेज है जहाँ पर सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से यहाँ पे कारकुनान पहुँचना शुरू हो चुके थे और स्टेज की तैयारियाँ भी की जा रही थी। इस वक्त भी स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है रावलपिंडी की हदूद में दाखिल होंगे, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर रावलपिंडी के एरियाज़ में अमीर जमात इस्लामी के इस्तकबाल और अवामी रोड मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर कैंप भी लगाए गए हैं, जहाँ पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी बदअमनी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ये उनका लॉन्ग मार्च था, जिसका वो जलसा गाह से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंटल पावर केसेस साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें 4 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज साख खान समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 2 नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। साहूवाल और पीरागायब रेफरेंस में नैब की शौकत तरीन बरियत के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने शौकत तरीन, परवेज अशरफ और दीगर मुलजमान की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर नोटिस जारी कर रखे हैं। नैब ने एहतसाब अदालत के जून 2020 के मुलजमान बरियत के 2 फैसलों को भी चैलेंज कर रखा है। IMF मुतालबात पर हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नवंबर तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये फी यूनिट तक महंगी होगी। ज़राए के मुताबिक फरवरी ta मार्च पहली समाही में बिजली की कीमत में 3.21 रुपये फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च ta मई दूसरी समाही में बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। जून ta अगस्त तीसरी समाही में बिजली की कीमत में 1.64 रुपये फी यूनिट इजाफा होगा, जबकि सितंबर ta नवंबर चौथी समाही में बिजली 1.98 रुपये महंगी होगी। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म होगी। दस्तावेज के मुताबिक सब्सिडी के खात्मे से 65 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम गुज़िश्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुतालिका इदारे तवानाई मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूरज और हवा से बिजली की पैदावार को फ़रोग़ देना हुकूमती तरजीह है। काबिल तजदीद ज़राए से कम लागत और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। 10,000 मेगावाट की शमसी तवानाई के मंसूबे पर काम जारी है।
अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई की। तो कराची में महंगाई की लहर बेकाबू हो गई है। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने बच्चों के चटखारे भी छीन लिए हैं। कराची में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों के मुंह के चटखारे भी छीन लिए। चिकन, जो कि प्रोटीन का सस्ता और आसान जरिया माना जाता है, अब उसकी बढ़ती हुई कीमतों को देखकर आवाम के होश उड़ गए। चिकन 590 से बढ़ाकर 600 तो कहीं 650 रुपए में फरोख्त की जा रही है। माएँ एक तरफ चिकन खाने वाले शौकीन बच्चों के लिए अब फिक्रमंद नजर आती हैं, तो दूसरी जानिब चिकन की खरीदारी करने वाले मर्द भी अब अपना बजट आउट होता देखकर हुकूमत से शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब बच्चे, आपको पता है, सिर्फ चिकन ही खाते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि हम सोचते हैं कि अब हम, मतलब पहले तो चिकन 300 350 भी अफोर्ड कर सकते थे, अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। ली नहीं, पिछले 2 माह से चिकन ली नहीं, हमने ना ले सकते हैं। ये जो गाय का गोश्त है उसके मुकाबले आ गई है, बिल्कुल बराबर हो गई ना उसके। वो 800 रुपये 650 रुपये, तब क्या लेगा इंसान? ना वो ले पाते ना ये ले पाते। अल्लाह का वास्ते हो, तुम्हें आपको खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है, कम कर दे महंगाई, गरीबों के लिए खाना मुश्किल हो गया है। दुकानदार भी चिकन के बढ़ते हुए नरखों के बाद खरीदारी में कमी आने के सबब कारोबार मुतासिर होने का शिकवा कर रहे हैं। हमारा मसला ये है, हमारे को बाहर से महंगी मिलेगी तो महंगी बेचेंगे ना, अगर सस्ती मिलेगी तो सस्ती बेचते। 200 रुपये किलो भी बेचिए चिकन। अब चिकन का फार्म रेट जो है वही निकल रहा है 430 रुपये 20 रुपये। हमारे को यहाँ पे आते आते 450 में बढ़ रही है, तो हम किस तरीके से कम रेट पे बेच सकते। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस घरों में अब दस्तरखानों से चिकन ही गायब हो चुकी है। चिकन की बढ़ती कीमतों ने आवाम के बजट को आउट करने के साथ साथ इन दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर कर रखा है। ताहम हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करके आवाम के साथ साथ इन दुकानदारों को भी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन शहरोज खान के साथ किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। मुल्क भर में ब्रायलर की कीमतें आसमान पर हैं, उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदा मुर्गी 450 रुपये किलो, जबकि मुर्गी का साफी गोश्त 750 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम मजीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात खुरम मलिक की इस रिपोर्ट में। मुर्गी का गोश्त भी आम शहरी की पहुंच से दूर होने लगा। इससे कबल बीफ और मटन के दाम महंगे हो जाने के बायस शहरी मुर्गी के गोश्त पर इन्हिसार करने लगे थे। ताहम हालिया दिनों में आने वाली महंगाई की नई लहर में मुर्गी के दाम भी इस कदर बढ़ गए कि आम शहरी के लिए अब चिकन खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। मुर्गी का गोश्त जो है अब बहुत महंगा हो गया है, जो अभी तकरीबन 750 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है, और गरीब आदमी के लिए जो है बहुत महंगा हो रहा है। अगर एक हफ्ता ना लें, ये खुद लोग सस्ती करेंगे। जब चीज़ महंगी होती है आवाम ज़्यादा लेती है, जब सस्ती होती है कोई नहीं लेता। मुर्गी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि फीड की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाने के बायस मुर्गी के नरखों में इजाफा करना इनकी मजबूरी बन चुका है। मुर्गी जो पहले तैयार होती थी 40 दिन में, अभी वो मुर्गी 80 दिन में तैयार हो रही है। जितनी वो फीड 40 दिन में कम खाती थी, अब वो उसके बदले में ज्यादा खा रही है। मुर्गी फरोश कहते हैं कि इन्हें फार्म से ही महंगे दामों मुर्गी मिलती है, जबकि पोल्ट्री मालकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से खुराक व दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा मुर्गी के नरखों में इजाफा की वजह बनी है, जिस पर हुकूमत को संजीदगी के साथ इकदामात करने चाहिए ताकि शहरियों को अर्जा नरखों पर मुर्गी का गोश्त दस्तयाब हो सके। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आखिर रातों रात मुर्गी की कीमतें इस सातवें आसमान को क्यों छूने लगी? मुर्गी का गोश्त महंगा होने पर फिर सवाल उठ गए हैं। अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्गी की फीड पर पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान रसाकशी और सर्द जंग ने मुर्गी के दाम फिर सातवें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। मुआशी बहरान और महंगाई के इस दौर में दीगर अशय खुरनोश की तरह पाकिस्तान में मुर्गी की कीमत पहले ही कुछ कम ना थी, मगर रवा हफ्ते रातों रात मुर्गी के गोश्त ने 6 सेंचुरियां अबूर करके फिर कई सवालात को जन्म दे दिया है। इस सब के बीच ये सवाल भी गूंजने लगा कि आखिर चिकन के रेट का तयन किस तरह किया जाता है? वो क्या अवामिल हैं जो कीमत में कमी या बेतहाशा इजाफे का सबब बनते हैं? क्या चिकन की कीमत के तयन में हुकूमत का भी कुछ हाथ है? पोल्ट्री के शोबे से जुड़े कारोबारी अफराद के मुताबिक
इस वक्त सबसे बड़ा बहरान मुर्गी का नहीं बल्कि उसकी फीड का है, जिसकी वजह से मंडी में मुर्गी की रसद में बहुत ज्यादा कमी आई है, जबकि तलब बढ़ चुकी है। कराची की बंदरगाह पर सोयाबीन और कैनोला से लदे भरे 2.5 माह से खड़े 12 बहरी जहाजों की वजह से मुर्गी की फीड बर वक्त पोल्ट्री मालिकान तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बहरान ने सर उठा लिया है। दूसरा सबब हुकूमत और अपोजिशन में जारी सियासी रसाकशी है, जिसके नतीजे में इंतजामिया भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कोई रेट कंट्रोल करता दिखाई ही नहीं देता, जिसके नतीजे में मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई है और खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। मुर्गी के साथ साथ अब आटा भी महंगा हो गया। लाहौर में एक के बाद एक बहरान अवाम को जकड़ने को तैयार। फ्लोर मिल्स मालकान ने तबले जंग बचा दिया। कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। आटा तुझे कहाँ ढूंढूं? लाहौर समेत पंजाब भर में आवाम की पुकार, मगर सब बेकार। फ्लोर मिल्स ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हुकूमती और फ्लोर मिल्स मालिकान की आपसी लड़ाई से फिर आवाम को आटे बहरान ने आ लिया। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 10 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई है, जिसके बायस दुकानदारों ने आटा गायब कर दिया है और आवाम मारे मारे फिरने लगे हैं। मगर आटा है कि मुट्ठी भर भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जारी पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अब न जाने कब इनका झगड़ा खत्म हो और कब नए अजाब से आवाम को निजात मिले। और पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, सरकारी गंदम आटा चोरी करने वाली फ्लोर मिल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मंटो का कहना है कि खुर्द बुर्द करने वाली मिल्स की एसोसिएशन रुकनियत खत्म की जाएगी। खुर्द बुर्द में मुलविस फ्लोर मिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया ना देंगे। फ्लोर मिल के खिलाफ इल्जामात की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के बाद कार्रवाई इंसाफ का तकाजा है। जिस मिल के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त साबित हुए उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मंटो का मजीद कहना है कि सेक्रेटरी फूड चंद फ्लोर मिल्स की वजह से 1100 मिल्स को माफिया करार दे रहे हैं। तमाम फ्लोर मिल्स को माफिया कहने की शदीद मुजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी फूड के इक़दामात अवाम और इंडस्ट्री के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को संगीन होती सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। सेक्रेटरी फूड हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को गुमराह कर रहे हैं। हुकूमत अपने सियासी फायदे और पॉलिसी के तहत सस्ता आटा स्कीम जारी करती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हमेशा सरकारी कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा किया है। महकमा खुराक आने वाली मुश्किल तरीन गंदम खरीदारी मुहिम पर तवज्जो नहीं दे रहा। सरकारी तवानाइयाँ ज़ाती अना की खातिर मिलिंग इंडस्ट्री को कुचलने पर सर्फ की जा रही हैं। पाक अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से वाशिंगटन में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी पर तावन बढ़ाने का मिशन। वाशिंगटन में पाक अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का शेड्यूल तय। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तानी वफद की क़ियादत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर वाशिंगटन में होगा और दरमियानी सतह के मुज़ाकरात 16 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तानी वफद की क़ियादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। वज़ारत खारजा जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स के हुक्काम और तीनों मुसल्लह अफवाज हेड क्वार्टर्स के हुक्काम भी वफद का हिस्सा होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीकी टीम की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस ऑफिस करेगा। मुज़ाकरात में दिफाई व सिक्योरिटी तावन के अमूर पर बात होगी। पाक अमरीका दिफाई मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ईरान से शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द को खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वफ्द की तशरीफ आवरी से तालीम के शोबे में कई मौक़े पैदा होंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ऐसे वफूद की मुलाकातों से ईरानी और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान रवाबित ज़्यादा मजबूत होंगे।